ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ باہر تیز موسلادھار بارش برس رہی تھی، لیکن کمرے کے اندر 18 برس کی لاریب دلہن کے لباس میں کھڑی تھی۔ اس کا نکاح برہان سے ہو چکا تھا اور وہ اس کے خیال سے شرماتے ہوئے ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ اس کا دل بار بار سینے سے باہر نکلنے کو مچل رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے بڑے مرحلے سے گزر گئی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ کبھی ہنستی، کبھی خوفزدہ ہو جاتی۔ اس کے اندر عجیب سی کیفیتیں تھیں۔ خوف اس لیے کہ یہ سب کچھ بہت اچانک ہوا، اس کا دماغ ابھی تک اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، اور خوشی اس لیے کہ اب وہ صرف ڈرائیور کی بیٹی نہیں رہی، اب وہ برہان شاہ کی بیوی تھی، اس حویلی کی مالکن جس کے خواب اس نے چپکے چپکے اپنی کوانی آنکھوں میں بنے تھے۔ وہ بیڈ کے سرے سے اٹھی اور ڈگمگاتے قدموں سے کمرے میں چلنے لگی۔ وہ سوچوں میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس کے دل کو جیسے کسی نے زور سے جھنجھوڑ دیا۔ اگر وہ اب تک اپنے گھر نہ پہنچی تو امی بھائی کتنا پریشان ہو جائیں گے۔ وہ ہمیشہ وقت کی پابند رہی تھی، کبھی اتنی دیر تک حویلی میں نہیں رکی تھی۔ آئینے میں اپنا سجتا سورتا روپ دیکھ کر گھبرا گئی۔ فٹافٹ اس نے چہرے سے میک اپ صاف کیا۔ لہنگا بدلنے کا وقت نہیں تھا، ورنہ مزید دیر ہو جاتی۔ اس نے گھبرا کر سرخ دوپٹے کو اتارا اور اپنی چادر کھول کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی کہ عین اسی لمحے دروازہ کھلا۔ سامنے برہان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک تیز چمک اتری، جسے وہ کوئی قیمتی خزانہ دیکھ رہا ہو۔ اسے یوں تکتا دیکھ کر لاریب شرما گئی۔ برہان نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی اور پھر اس کے قریب آنے لگا۔ تم تو بالکل حویلی کی ملکہ لگ رہی ہو۔ لاریب اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن اس کا دل ہاتھ سے نکلنے لگا۔ برہان نے اس کی جھجک کو محسوس کر لیا، تبھی زیر لب مسکرانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید قریب آتا، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، برہان سائیں، مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر حیرت سے بولا، گھر؟ کون سا گھر؟ اب یہ حویلی تمہارا گھر ہے، تم بیوی ہو میری۔ لاریب نے نظریں جھکا لی۔ اتنے بڑے اعزاز پر اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ مگر سائیں، یہ بات تو صرف ہم دونوں کو پتا ہے نا، آپ کے گھر میں نہ کوئی جانتا ہے اور نہ ہی کوئی میرے گھر میں۔ برہان نے آگے بڑھ کر اس کی چادر کو دور پھینکا اور اس کی حسین سراپے پر نظر گاڑ کر بولا، تو کیا ہوا، ایک دن سب کو پتا چل جائے گا۔ اتنا ہی کافی ہے کہ ہم دونوں جانتے ہیں کہ ہم میں کیا رشتہ ہے۔ اس نے نرمی سے اس کے بالوں کی لٹ اپنی انگلیوں پر لپیٹ لی۔ لاریب چونک گئی اور فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ برہان سائیں، اگر میں گھر نہ پہنچی تو ابا اور امی بہت پریشان ہو جائیں گے۔ میں کبھی اتنی دیر حویلی میں نہیں رکی۔ برہان کی آنکھوں میں نرمی سے ایک دم سختی اتر آئی۔ بلا وجہ پریشان ہو کر اتنی حسین رات کو کیوں خراب کرنے پر تلی ہو؟ کہہ دینا برہان سائیں کا کام کر رہی تھی۔ تم برہان شاہ کی بیوی ہو، اب تمہیں اب کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنے امی اور بھائی سے بھی نہیں۔ لاریب نے گھبرا کر سر ہلایا۔ آپ بات سمجھ نہیں رہے۔ اس کے لفظ ابھی پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ برہان نے اچانک اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ گھبرا گئی، مگر برہان نے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ برہان نے اسے باہوں کے گھیرے میں لے لیا تو لاریب کی سانسیں تیز ہو گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کسی مچھلی کی طرح اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر برہان کے بازو فولاد کی طرح سخت تھے۔ برہان نے اس کے کان کے قریب جھک کر بھاری آواز میں سرگوشی کی، اب یہ جھجک چھوڑ دو لاریب، اب مجھ سے بچنا محال ہے تمہارا۔ لاریب کے بدن میں پھریری سی دوڑ گئی، اس نے لب کپ کپائے۔ اس کی بوجھل سانسوں کے سامنے وہ حیا سے دوہری ہونے لگی۔ اچانک برہان اسے باہوں میں بھر کر بستر تک لایا۔ لاریب کے اندر خوف اور خوشی آپس میں ٹکرا گئے۔ لاریب اس کی وحشتوں کے سامنے بے بس ہونے لگی۔ وہ اپنی عزت اور اپنی معصومیت بچانا چاہتی تھی، دوسری طرف اس کے دل میں یہ احساس بھی تھا کہ اب وہ اس کی بیوی ہے اور یہ رشتہ مقدس ہے۔ اور پھر فرار کے راستے سب مسدود ہو گئے تو اس نے مزاحمت تک کر دی،
اس کی بے رحم وحشتوں کے سامنے 18 سالہ نازک سی لڑکی ہار گئی اور اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بارش اب ٹوٹ کر برس رہی تھی اور اندر لاریب کی ہلکی ہلکی سسکیاں گونج رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ باہر بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے اٹھی اور پھر جو ہی بیڈ پر آ کر لیٹنے لگی تھی کہ برہان آہستہ سے کروٹ موڑ کر اسے دیکھ کر بولا، لاریب اب تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ اس کے لہجے میں عجب روب اور فیصلے کی سختی تھی۔ لاریب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ ہکا بکا برہان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے سر جھٹکے سے اوپر اٹھایا، آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، میں کہاں جاؤں؟ برہان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اپنے والدین کے پاس، اور کہاں؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیے اور چت لیٹ کر چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ لاریب کے ہاتھ پیر لرزنے لگے اور وہ بوکھلا کر بولی، لیکن ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اب یہ میرا گھر ہے اور میں آپ کی بیوی ہوں۔ ہاں، تو میں نے کب انکار کیا کہ تم میری بیوی نہیں ہو؟ تو پھر آپ مجھے واپس جانے کا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب تم سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت تم اتنا پٹر پٹر نہیں بولتی تھی۔ اب تو بیوی بنتے ہی کینچی کی طرح تمہاری زبان چلنے لگی ہے۔ تو کیا آپ مجھے ایک رات کی بیوی بنا کر اپنی زندگی میں لائے تھے؟ کیا پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں، تم ہی میری زندگی میں ہمیشہ بیوی بن کر رہو گی اور جلد ہی میں تمہیں حویلی بھی لے آؤں گا، لیکن ابھی اس بات کو خفیہ رکھنا ضروری ہے۔ اس کی بات سن کر لاریب کے دل کو جھٹکا سا لگا۔ خفیہ؟ کیوں خفیہ؟ جب نکاح ہو گیا تو اب اس بات کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ برہان نے آہستگی سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سگریٹ جلایا، دھوئیں کا چھلا بناتے ہوئے بولا، تم نہیں سمجھو گی، ابھی تم بہت کم سن ہو۔ میں یہ نکاح ابھی کسی صورت بھی منظر عام پر نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ میرے اور تمہارے دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ موقع محل دیکھ کر میں اعلان کر دوں گا، لیکن اگر یہ بات ابھی سب کو پتہ چل گئی تو ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، جسے سنبھالنا پھر میرے بس کی بات نہیں ہوگی۔ ہنگامہ؟ یہ تو آپ کو نکاح سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، لاریب نے آہستہ سے کہا تو برہان نے اسے سخت نظروں سے گھورا تو وہ سر جھکا کر اپنی انگلیوں کو چٹکنے لگی۔ وہ لمحہ لاریب کے لیے ناقابل یقین تھا۔ میرے خیال میں تمہیں اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اب تم چلی جاؤ تو بہتر ہوگا۔ کسی نے تمہیں میرے کمرے میں دیکھ لیا تو خواہ مخواہ سوال بنیں گے۔ تو اس نے سر اٹھا کر دکھی نظروں سے برہان کی طرف دیکھا، جو اس کے پاس تو تھا لیکن ایک دم سے فاصلہ بنا بیٹھا تھا۔ برہان، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ نکاح کے بعد کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکے گا۔ یہ آپ ہی تھے جو کہتے تھے کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ ہوں۔ پھر سہاگ رات مناتے ہی آپ اتنا کیسے بدل گئے کہ اپنے لفظوں کی لاج بھی نہیں رکھ رہے؟ واٹ نان سینس! کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ یہ لاج واج، بدل گیا وغیرہ جیسی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اب میرا مزید دماغ مت خراب کرو۔ برہان کی آنکھوں میں ایک دم سے غصہ جھلکنے لگا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور جھنجھلا کر اس کی طرف مڑا۔ دیکھو، میں تمہیں الگ نہیں کر رہا، سمجھنے کی کوشش کرو لاریب۔ میں صرف کچھ دن کے لیے تمہیں تمہارے والدین کے پاس بھیج رہا ہوں۔ تم میری بیوی ہو اور میری بیوی کی حیثیت سے ہی تم واپس جاؤ گی۔ پھر تمہیں کس بات کا ڈر اور فکر ہے؟ لاریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دھیرے سے بولی، ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ سب خواب نہ بن جائے، آپ کہیں مجھے بھول نہ جائیں۔ برہان نے اس کے قریب آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آواز میں نرمی در آئی۔ پاگل لڑکی، تمہارا اور میرا رشتہ کوئی خواب نہیں۔ میں تمہیں بھولنے والوں میں سے نہیں ہوں، مگر حالات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ابھی الیکشن آنے والے ہیں، سیاست میں چھوٹے فیصلے بھی بڑے طوفان کھڑے کر دیتے ہیں۔ میں کوئی ٹینشن نہیں چاہتا۔ لاریب نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بے شک وہ 18 برس کی کم عمر لڑکی تھی، مگر بے وقوف نہیں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ وہی برہان ہے جس کی محبت میں گلے گلے ڈوب کر اس سے خفیہ نکاح کیا تھا۔ یہ وہی برہان ہے جس نے کہا تھا نکاح کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکے گی، لیکن آج وہی برہان اسے جدا کرنے کی بات کر رہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں بے یقینی نے جگہ بنا لی۔
اس کی آنکھوں میں سوال تھے مگر لہجہ خاموش تھا۔ بالآخر اس نے ہمت کر کے کہا، میں صبح چلی جاؤں گی، ابھی واپس گئی تو گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ برہان نے گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں کہا، تم اگر یہاں صبح میرے کمرے سے نکل کر گئی تو پوری حویلی میں چمگوئیاں شروع ہو جائیں گی کہ جوان جہان لڑکی آخر برہان کے کمرے میں کیا کر رہی تھی، اور میں نہیں چاہتا کہ حویلی میں تمہیں لے کر سرگوشیاں شروع ہوں۔ اپنے گھر والوں کو مطمئن کر دینا کہ بڑی بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو انہوں نے تمہیں روک لیا۔ وہ نظریں جھکا کر سسکنے لگی مگر برہان سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ اس نے آگے بڑھ کر لاریب کے آنسو صاف کرنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کی اور نہ ہی کوئی ہمدردی دکھائی۔ لاریب نے اپنے آنسو خود ہی صاف کیے اور پھر انتہائی امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، آپ مجھے کب تک بلا لیں گے؟ میں یہاں کب تک واپس آؤں گی؟ برہان نے اس کی گال پر ہاتھ رکھا، مسکرا کر بولا، جب وقت مناسب ہوگا تو تمہیں بلا لوں گا، مگر یاد رکھنا تم میری بیوی ہو، یہ رشتہ کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اس کے لہجے میں ایسی یقین دہانی تھی کہ لاریب کی آنکھوں میں جھلملاتی ہوئی بے یقینی دھیرے دھیرے مٹنے لگی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا۔ شاید وہ اسے سچ مان بیٹھی تھی، شاید وہ اس کے لہجے کی نرمی میں کھو گئی تھی، یا شاید وہ اس کی محبت میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی کہ وہ شک کو جگہ دینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ حالانکہ برہان کی کئی باتوں میں تضاد تھا۔ اس نے چادر اچھی طرح سے اوڑھی اور چپکے سے برہان کے کمرے سے نکل آئی۔ اب اس کا رخ اپنے والدین کے گھر کی طرف تھا۔ واپسی پہ قدم بھاری تھے اور دل بوجھل، لیکن وہ اپنے دل کو ڈھارس دیے جا رہی تھی کہ وہ برہان شاہ کی بیوی ہے اور ایک دن یہ حویلی تو کیا ساری دنیا جان جائے گی۔ اسی کشمکش میں 3 مہینے گزر گئے تھے۔ گھر والوں کو شک تک نہ ہوا۔ اس کی راتیں حویلی میں گزرتی، صبح ہوتے ہی وہ حویلی کے پچھلے دروازے سے نکل آتی۔ وہ برہان شاہ کے ڈرائیور کی بیٹی تھی۔ ایک دن حویلی میں کام کی غرض سے بلوائی گئی تو برہان کی نظر اس پر پڑ گئی اور وہ اسی لمحے اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ لاریب بھی اتنا وجیح شاندار مرد کو خود پر مرتا دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ اس پر جو بھی نئی نئی جوانی چڑھی تھی، اور جوانی میں کوئی چاہنے والا سراہنے والا مل جائے تو لڑکیاں کچی پکی نیند کے غبار میں جاگنے لگتی ہیں۔ وہ بھی چپکے چپکے اسے چاہنے لگی، لیکن برہان اس آنکھ مچولی سے تنگ تھا، اسے مکمل پانا چاہتا تھا، لہذا اسے پروپوز کر ڈالا۔ وہ خوش ہوئی مگر وہ نکاح خفیہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن لاریب نہ مانی۔ برہان نے جب مرنے کی دھمکی دی تو مجبوراً اسے نکاح کرنا پڑا۔ وہ دن بھر گھر کے کاموں میں لگی رہتی مگر دل برہان کی قربت کے لیے مچلتا رہتا۔ جب گھر والے سو جاتے تو وہ چپکے سے نکل آتی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے ہر پل یہ خوف بھی لاحق رہتا کہ کہیں ابا اور بھائی کو نکاح کی بات پتہ نہ چل جائے، ورنہ بہت برا ہو جاتا۔ ڈر اپنی جگہ مگر برہان کے پیغام اپنی جگہ۔ جو ہی پیغام ملتا وہ دوڑ کر جاتی، خواہ اس کے لیے کتنے ہی بہانے کیوں نہ بنانے پڑ جائیں۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ برہان سے کترانے لگی۔ وہ اب بلواتا تو نہ جاتی۔ کبھی سر درد، کبھی بخار، کبھی گھر کے دباؤ کے بہانے بنا کر وہ حویلی کم کم جانے لگی تھی۔ اس کے نہ آنے پر برہان کی طبیعت میں چڑچڑا پن آنے لگا۔ وہ جو کبھی اس کے لیے تڑپتا تھا اب غصے سے بھرنے لگا۔ کئی بار سخت الفاظ میں لکھ بھیجتا مگر پھر نرمی دکھا کر منا بھی لیتا، لیکن جب 2 دن سے مسلسل بلوانے کے باوجود وہ نہ آئی تو اس کا صبر جواب دے گیا۔ وہ شام ڈھلے سیدھا لاریب کے گھر آ پہنچا۔ دروازہ کھلا تو سناٹا تھا۔ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی اس کی نگاہ اس پر جا ٹھہری۔ لاریب چارپائی پر بیٹھی تھی، چہرے پر ہلدی جیسی زردی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، بال بکھرے ہوئے۔ وہ لاریب لگ ہی نہیں رہی تھی جسے وہ جانتا تھا۔ آہٹ پر لاریب چونکی اور گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ برہان، آپ یہاں؟ تم رات کیوں نہیں آئی؟ وہ غصہ ضبط کرتے بولا۔ لاریب نے چونک کر اوپر دیکھا۔ اس کی آواز مدھم اور کمزور تھی۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ برہان کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا آفت پڑ گئی طبیعت کو؟ لاریب نے بمشکل لب کھولے۔ کافی دن سے دل مترا رہا ہے، چکر آ رہی ہیں، کمزوری سی رہتی ہے۔
बुरहान चौंक कर पल भर को साकित हो गया, जैसे दिमाग में रोशनी का एक झमाका हुआ हो। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर अचानक सख्त लहजे में बोला, तुमने इस कैफियत के बारे में किसी से कोई बात तो नहीं की? तो वो नफी में सर हिलाने लगी। तैयार हो जाओ, अभी चलना है। लारैब घबरा गई। कहां? डॉक्टर के पास। और कहां? वो बौखलाकर खड़ी होने लगी, मगर उसे एकदम से चक्कर आया और वो लड़खड़ा गई। तो फटाफट बुरहान ने उसे सहारा दिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, 2 माह से ये हाल है और मुझे कुछ खबर नहीं। लारैब ने नजरें चुरा ली। मैंने सोचा शायद ये बस कमजोरी है, ये सिलसिला जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो बढ़ता ही जा रहा है। बुरहान का दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया। उसके अंदर तूफान उठ रहा था। 2 माह की खामोशी, लारैब की बेचैनी, सब कुछ यकायक समझ आने लगा। वो उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, पागल लड़की, तुम्हें खबर है ये कितना बड़ा मामला हो सकता है? लारैब ने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई। कौन सा मामला? बुरहान ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। यही कि शायद तुम। वो जुमला अधूरा छोड़ गया। लफ्ज उसके गले में अटक गए। लारैब ने पहली बार उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जिसे बयान नहीं किया जा सकता था। शायद तुम। क्या? आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं। वो झुंझलाया तो कमरे में सन्नाटा फैल गया। बुरहान ने सख्ती से उसका बाजू थामा। देखो, मैं कुछ नहीं जानता, तुम मेरे साथ चल रही हो। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त डॉक्टर के पास ले जाना चाहता हूं, ताकि पता चले कि ये सब क्यों है। लेकिन उसका इनकार देखकर बुरहान ने दुरुस्त लहजे में बोला, बस और कुछ नहीं सुनना, अभी मेरे साथ चल रही हो तुम। बुरहान की फिक्र देखकर लारैब दिल ही दिल में बेपनाह खुश हुई। उसका तो दिल ही झूम उठा। मैं क्यों नहीं जाऊंगी अपनी साईं सरकार के साथ? वो खुशी से बोली और उसकी पलकें भीगने लगी। लेकिन अब्बा अम्मी, अगर उन्होंने देख लिया तो? मैं संभाल लूंगा सब कुछ, तुम फिक्र मत करो। उसके लहजे की वही पुरानी सख्ती और खुद एतमादी थी, मगर आज लारैब के दिल में अजीब सी लर्जिश थी। ये वही बुरहान था जो उसे बीवी कहता था, मगर दुनिया के सामने इनकार करता था। ये वही बुरहान था जो उसे तन्हाई में करीब रखना चाहता था, मगर लोगों के दरमियान उसे भूल जाता। मगर दिल की धड़कन ने उसे मजबूर कर दिया कि वो उस पर भरोसा करे। वाहिस्ता से खड़ी हुई, दुपट्टा संभाला और बुरहान के गले लग गई। बुरहान ने उसे फौरन खुद से अलग किया। चलो, वक्त जाया मत करो। वो उसकी बेइतनाई देखकर कुड़ गई। निकाह से पहले और निकाह के बाद वाले बुरहान में काफी फर्क था। उसका दिल उदास होने लगा। रास्ता खामोशी से गुजरा। लारैब बुरहान के अजीबो गरीब रवैये पर बहुत परेशान हो गई। फिर दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगी कि या अल्लाह, मेरे हक में अब तो अच्छा कर दे। लारैब बहाने से घर से निकल तो आई, लेकिन अब एक खफान सा उसके दिल पर भर रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। हालांकि वो बुरहान के चेहरे पर अपने लिए बाकायदा फिक्रमंदी देख रही थी। पहली बार उसने बुरहान को अपने लिए परेशान देखा तो उसका दिल मुतमईन हुआ, लेकिन वो जब उसका रवैया देखती तो परेशान हो जाती। इसी कश्मकश में उनकी गाड़ी गायनाकोलॉजिस्ट के क्लिनिक के बाहर रुकी। अंदर दाखिल होते ही लारैब के कदम कांप गए। सफेद दीवारें, मेडिसिन की खुशबू और मरीजों के परेशान हाल चेहरे। वो नर्वस होकर कुर्सी पर बैठ गई। बुरहान के चेहरे पर सख्ती छाई हुई थी, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उठाए हुए हो। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उन्हें अंदर बुलाया। मुआयना तवील नहीं था। रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर की आंखों में चमक आई। मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। ये जुमला सुनते ही लारैब का दिल जैसे खुशी से झूम उठा। उसके गालों पर सुर्खी दौड़ गई, आंखों में आंसू छलक आए। वो कांपते होंठों के साथ बार बार दिल में दोहरा रही थी, मैं मां बनने वाली हूं। वो लम्हा उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशखबरी बन गया। वो जो ही आंखों में जुगनू भरते हुए बुरहान की तरफ मुड़ी तो वो खुशी यकदम धुंधला गई, क्योंकि बुरहान के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसका चेहरा उतर चुका था, पेशानी पर बल और आंखों में एक अजीब सा तनाव था। डॉक्टर अभी लारैब को कुछ और समझा रही थी कि बुरहान ने अचानक सर्द लहजे में कहा, डॉक्टर, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। कितनी रकम चाहिए, बोलो। लफ्ज थे कि अंगारे लारैब को रुलाने लगे।
उसने बेयकीनी से बुरहान की तरफ देखा। दिल जैसे हलक में अटक गया। साईं, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये हमारा बच्चा है, हमारी मोहब्बत की निशानी है। डॉक्टर ने भी हैरान होकर सर उठाया। चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे। मिस्टर बुरहान, ये आपका पहला बच्चा है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मगर बुरहान ने दोनों हाथ जोर से टेबल पर मारे। कमरा लरज गया। डॉक्टर, तुम्हें पैसों से मतलब होना चाहिए, राइट? बस ये किस्सा खत्म करो। नायब की आंखों से आंसू झड़ने लगे। वो एकदम कुर्सी से उठ खड़ी हुई। साईं, आप ये जुल्म नहीं कर सकते। ये बच्चा मेरा नहीं, हमारा है। ये आपका भी खून है। बुरहान का जब्त टूट गया। वो धाड़ा, बकवास बंद करो लारैब। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर ने घबराकर दोनों को देखा, फिर आहिस्ता से बोली, एक बात बताइए, आप दोनों वाकई मियां बीवी हैं? बुरहान आग बगोला हो गया। क्या तुम्हें सबूत दिखाने पड़ेंगे? तुम शायद मुझे जानती नहीं। हम इस इलाके के सबसे बाअसर लोग हैं। बेहतर है कि जैसा कहा वैसा करो। डॉक्टर की आंखों में शक और खौफ दोनों झलक रहे थे। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक लारैब भागकर बाहर निकल गई। उसका दिल कांप रहा था मगर वो रुकी नहीं। बुरहान भी गुस्से से उसके पीछे लपका। बाहर जाकर उसका बाजू जोर से पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? लारैब ने आंखों में आंसू भरकर उसकी तरफ देखा। आवाज कांप रही थी मगर वो उसकी आंखों में आंखें डालकर मजबूत लहजे में बोली, मैं किसी सूरत भी अपना बच्चा खोना नहीं चाहती। आप कैसे बाप हैं जो अपनी औलाद के आने से पहले ही उसके दुश्मन बन गए हैं? बुरहान की आंखों में लम्हा भर के लिए बेबसी उभरी। वो गुस्से को पीते हुए बोला, तुम नहीं समझोगी लारैब, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम 2-4 दिन ले लो, अच्छी तरह सोच लो, फिर मुझे जवाब देना। वो जिद होकर बोला तो लारैब ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था मगर उसने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए और बिना कुछ कहे वो बुरहान के साथ गाड़ी में बैठ गई। वापसी का सफर खामोशी से कटा। बुरहान बहुत तेज ड्राइविंग कर रहा था और ये देखकर लारैब का दिल और भी दुख गया। उसे लगा जैसे वो उसे पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन अब उसे भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। उसे उम्मीद थी कि बच्चे की आमद पर उसे हवेली में मुकाम मिल जाएगा। वो बुरहान की बीवी के नाम से हवेली में पहचानी जाएगी, मगर जिसके नाम के साथ उसका नाम जुड़ा था वो तो खुद ही बच्चे का सुनकर मुंह छुपाए फिर रहा था। ऐसे में उस बच्चे का दुनिया पर आना तो खुद इसकी जात पर कई सवाल उठा रहा था। एक बाप अपने ही बच्चे को कबूल नहीं कर रहा तो दुनिया क्या कबूल करेगी? वो जितना इस बात को सोच रही थी उतना ही उसका दिल खौफ से कांप रहा था। नायब खिड़की से बाहर अंधेरी सड़क को देखती रही। दिल में एक ही बात आ रही थी कि जिस शख्स को वो अपनी जिंदगी मान बैठी थी वही आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीनने पर तुला है। गांव की हुदूद आते ही बुरहान ने गाड़ी रोक दी। उतरो। लारब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। दिल सदमे से भर गया मगर कुछ ना बोली। खामोशी से दरवाजा खोला और नीचे उतर गई। यकायक गाड़ी धूल उड़ाती हुई दूर निकल गई। वो अंधेरे में खड़ी रही। आंखों से बहते आंसू बारिश के कतरों की तरह मट्टी में जज्ब हो रहे थे। दिल चीख रहा था। यही मोहब्बत थी बुरहान की, यही वादे थे। वो धीरे धीरे कदम उठाती अपने घर की तरफ बढ़ गई। दिल के अंदर एक तूफान था मगर पेट पर हाथ रखते ही उसे एक अजीब सा हौसला मिलता। नहीं, ये बच्चा मेरा सहारा है। चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, मैं अपनी औलाद को जन्म दूंगी। रात का अंधेरा गहरा होता गया मगर उसके दिल में एक नया अज़म जागा। गायनी क्लिनिक से वापस आए 1 हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन इस दौरान बुरहान ने बिल्कुल भी उसका हाल नहीं पूछा। शुरू में तो लारैब को भी इस बात की परवाह नहीं हुई, लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद उसे ये बात बेहद अजीब लगी कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। उसने जब फोन पर राब्ता करने की कोशिश की तो फोन मुसलसल बंद जा रहा था, तो उसे एकदम तशवीश ने आन घेरा। उसने हवेली जाने का फैसला किया और घर में बताए बगैर ही वो हवेली जा पहुंची, मगर हवेली की रौनक देखकर वो ठुठक कर रुक गई। पूरी हवेली
बरकी कुमकुमों से सजाई गई थी। यहाँ किसकी शादी हो रही है? वो दिल ही दिल में सोचते हुए हवेली के अंदर दाखिल हुई तो अंदर समा ही कुछ और था। हर तरफ रौनक ही रौनक थी। दूर कहीं से ढोलक की मध्यम थाप और लड़कियों के कह कहे उभरते सुनाई दिए। न जाने क्यों उसे ये तमाम कह कहे दिल पर बोझ लगने लगे। उसका दिल एकदम से जैसे मुट्ठी में आ गया। एक अनजानी सी घबराहट शुरू हो गई। वो दबे कदमों हॉल के करीब पहुंची। अंदर झांका तो औरतें टोलियों में बैठी गीत गा रही थी। कुछ लड़कियां झूम कर रक्स कर रही थी और दरमियान में मेहंदी के सजे थाल रखे थे जिनमें मेहंदी, चूड़ियां और शगुन के लवाजमात थे। लारैब की आंखें हैरत से फैल गईं। वो हैरत से एक कोने में खड़ी हो गई। उसी लम्हे हवेली की पुरानी मुलाजमा उसके पास से गुजरी। लारैब ने तेजी से उसे रोका। ये क्या हो रहा है हवेली में? किसकी शादी है? मुलाजमा की आंखों में अजीब सा तंज और बेजारी उभरी। ओहो, तुम क्यों इतने दिनों से गायब हो? बस तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आना नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? वो खोजती हुई नजरों से उसे सर से पैर तक देखकर बोली। लेकिन लारैब के चेहरे पर एकदम से बेजारी उतर आई और उसने फिर से सवाल दोहराया, किसकी शादी है? अभी शादी नहीं है, लेकिन आज बुरहान साईं की बात पक्की हो गई है। शादी तो 1 हफ्ते बाद होगी, लेकिन बीजान का चूंकि इकलौता वारिस है तो उन्होंने शादी से कुछ दिन पहले ही शुगल लगा लिया। ये सुनकर लारैब पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। कदम लड़खड़ाए। उसने खुश्क होंठों पर जबान फेरी मगर मुंह से एक लफ्ज ना निकल सका। पैरों तले से जमीन खिसक गई। मुलाजमा ने उसके चेहरे को गौर से देखा और सर्द लहजे में बोली, क्या हुआ? तुम्हें तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई सकता हो गया हो। खुशी की खबर पर सब हंसते हैं मगर तुम्हारा तो रंग उड़ गया। लारैब का दिल चाहा वो चीख कर सबको बता दे कि बुरहान पहले ही उसका है, मगर जबान जैसे बंद हो गई। आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे कि उसने जल्दी से नजरें झुका ली और बिना कुछ कहे वहां से निकल आई। दिल में तूफान बरपा था। बुरहान उसे कैसे भूल सकता है? वो इसकी बीवी है, वो उसकी मोहब्बत है। उसने तो वादा किया था कि उन दोनों के दरमियान कोई दीवार नहीं खड़ी होगी, मगर आज ये दीवार इतनी बड़ी हो गई कि पूरी हवेली में चरागा है और वो तन्हा अंधेरों में डूब गई। वो दबे पांव बुरहान के कमरे की तरफ बढ़ी। दिल के अंदर खौफ और गुस्सा एक साथ था। कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी। हिम्मत करके अंदर दाखिल हुई। बुरहान आईने के सामने खड़ा था। नहा धोकर गीले बालों में ब्रश कर रहा था। उसके पास से महंगे तरीन परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में महका रही थी और वो कोई इंतहाई रोमांटिक गाना गा रहा था। उसे इतना मुतमईन और खुश देखकर लारैब की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वाकई दूल्हा लग रहा था, लेकिन किसी और का। अचानक बुरहान ने पलटकर उससे देखा तो लम्हे भर के लिए उसकी आंखों में पहचान की झलक उभरी, मगर फौरन ही अजनबियत छा गई। लारैब, कहो कैसे आना हुआ? अब क्या आप मुझे ऐसे पूछेंगे? उसके लबों से हल्का सा शिकवा निकला तो बुरहान के चेहरे पर एकदम से संजीदगी छा गई। ये लहजा, ये रवैया लारैब के दिल को छलनी कर गया। कहाँ वो हर बार उसे देखकर मुस्कुराता, बातों में मोहब्बत के रंग भरता, और कहाँ आज ये अजनबी सा लहजा। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। ये हवेली में क्या हो रहा है? बुरहान ने नजरें चुराकर सर्द लहजे में कहा, क्या हो रहा है? वही जो तुमने खुद देखा। मेरी शादी होने वाली है। लारैब के अंदर जैसे कोई चीज टूटी। आपकी शादी? ये कैसे मुमकिन है? आपकी शादी तो हो चुकी है मेरे साथ। आप मेरी जिंदगी हैं, मैं आपकी बीवी हूं। बुरहान एक झटके से पलटा। आंखों में तेज चमक उभरी और वो इंतहाई बेरहमी से बोला, देखो, मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं, मगर ये सब सियासी फैसले हैं। हमारे खानदान में ऐसी शादियां होती रहती हैं, इसीलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। लारैब के दिल की दुनिया उजड़ गई। वो गुस्से और बेबसी से कपकपा उठी। कितने आराम से आप ये सब कह रहे हैं कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। कमाल बात कर रहे हैं। हालांकि हमारा निकाह हो चुका है और मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं।
और आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। आप मुझे बताएं कि मैं कैसे अपनी परेशानी छोड़ दूं, जबकि आपने ना तो निकाह का ऐलान किया और ना ही आप अपने होने वाले बच्चे को कबूल कर रहे हैं। बुरहान ने गहरी सांस ली। तुम इस वक्त जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो रही हो। ठंडे दिल से सोचो तो तुम्हें हर बात का जवाब खुद ही मिल जाएगा। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया है, चाहो तो इन सब से निजात हासिल कर सकती हो। वैसे भी बच्चा अभी हमने प्लान नहीं किया और ना ही अभी इतना ज्यादा वक्त गुजरा है। सोच लो फिर मुझे बता देना। ये कहकर वो अलमारी से अपनी घड़ी उठाने लगा, जैसे लारैब की मौजूदगी उसके लिए बेमायनी हो। लारैब ने आंखों में नमी लिए उसे घूर कर देखा। ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगी कि मेरा क्या प्रोग्राम है। ये कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकली, मगर बुरहान ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। बुरहान की तरफ से उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। वो खुद को कोसने लगी कि अब इस समझ का क्या फायदा कि वो अपनी जिंदगी में सब कुछ गंवा चुकी थी। हवेली की रौनक, कह कहे, ढोलक की थाप, सभी उसे अपना मजाक उड़ाते महसूस होने लगे तो वो दौड़ते हुए हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो जल्द अज जल्द इस जगह से निकल जाना चाहती थी। बुरहान की शादी में सिर्फ 3 दिन रह गए थे। वो पहले ही बहुत परेशान थी कि अचानक उसकी खाला उसका रिश्ता लेकर आ गई। सारे घर वाले खुशी से पागल ही हो गए। वो उनकी खुशी देखती तो उसका दिल करता कहीं दूर भाग जाए। उनके यहाँ लड़की वालों से पूछने की जहमत गवारा नहीं की जाती थी, लिहाजा इसके घर वालों ने हाँ कर दी। तो खाला ने जिद बांधी कि अब मंगनी के बजाय निकाह करके लड़की को अपने साथ रुखसत करके ले जाना चाहती हैं। अम्मी अब्बा को भला क्या एतराज, वो तो पहले से ही उसका जहेज तैयार करके बैठे हुए थे, लिहाजा कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। घर का मामला था, लिहाजा अम्मी और अब्बा ने हाँ कर दी। चुनाचा अब 1 हफ्ते बाद उसका निकाह प्लस रुखसती होनी थी। वो बेहद परेशान थी। जिस दिन से उसकी बात पक्की हुई थी उसे एक पल को चैन नहीं था, क्योंकि वो ये बात जानती थी कि निकाह पर निकाह नहीं हो सकता, ये गुनाह है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो मां बनने वाली थी, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि घर में किसको एतमाद में लेकर ये सारी बात बताए। ये बात ही ऐसी थी कि जो भी सुनता वो बर्दाश्त ना कर सकता। उस रात वो बहुत देर तक जागी, जैसे किसी फैसले तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। बाहर बादल जोर से गरज रहे थे, जैसे मूसलाधार बारिश होने वाली हो। उस रात बहुत तेज तूफान आया हुआ था, लेकिन एक तूफान लारैब के दिल में चल रहा था, और ये तूफान उनसे कहीं ज्यादा गहरा और खौफनाक था। उसके हाथ लरसते हुए अपने पेट पर आ जाते, फिर वापस हट जाते। वो जैसे खुद को बार बार यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वो सब अपने बच्चे के लिए ठीक कर लेगी। उसके घर वाले उसकी शादी की तैयारियों में मगन थे। अम्मा और अब्बा का चेहरा खुशी से दमक रहा था। अम्मा कहते ना थकती कि लारैब की किस्मत बहुत अच्छी है, इसे बहुत अच्छे रिश्ते मिल गए हैं। जबकि ऐसी बातें सुनकर लारैब का दिल दहलने लगता। उसे हर वक्त धड़का लगा रहता कि अगर उसके निकाह और उसके नतीजे में होने वाले बच्चे के बारे में उसके वालिदैन या भाई को पता चल गया तो क्या होगा। वो इसी परेशानी में टहल रही थी कि अचानक भाभी शगुन का डब्बा उठाए उसके कमरे में दाखिल हुई। चेहरे पर मुस्कुराहट, हाथ में एक शोख सुर्ख सूट जिस पर सुनहरी गोटे की कढ़ाई थी, उसके सामने लहराते हुए बोली, लारैब देखो तो कितना हसीन सूट है, खाला शगुन के वास्ते तुम्हारे लिए लाई है, साथ ही मैचिंग ज्वेलरी, और खुद से देखो, तुम तो सच में वाकई किस्मत वाली निकली हो। इतनी कंजूस खाला तुम पर अंधाधुंध पैसे खर्च कर रही हैं। लारैब ने उन तमाम चीजों को सरसरी सा देखा और फिर मुंह फेर लिया और गुस्से से बोली, आग लगा दें, मुझे नहीं चाहिए ये सब। उसकी बात सुनकर भाभी का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। क्या कह रही हो लारैब, ये तो तुम्हारी शादी की खुशी के कपड़े हैं। हर लड़की ख्वाब देखती है ऐसे जोड़ों के, और तुम इनकार कर रही हो। लारैब के लब कपकपाने लगे, दिल की धड़कन काबू से बाहर थी। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, भाभी मुझे ये सूट नहीं चाहिए,
ये जेवर नहीं चाहिए, ये शादी नहीं चाहिए। भाभी का माथा शिकनों से भर गया। वो उसके करीब आकर बैठ गई। क्या हुआ तुम्हें? ये जिद है या कोई और बात है जो तुम छुपा रही हो? लारेब ने गहरी सांस ली, अपने दोनों हाथ पेट पर रखे और धीरे से बोली, भाभी मैं इस शादी के काबिल नहीं हूं। भाभी ने चौंक कर उसका चेहरा देखा। ये कैसा जुमला है? क्यों नहीं हो काबिल? कौन सी कमी है तुम में? लारेब ने आंखें बंद कर ली और चीख कर बोली, मैं मां बनने वाली हूं। तो उसकी बात सुनकर भाभी बौखलाकर गुस्से से बोली, मुंह बंद कर जालिम लड़की, अगर किसी ने सुन लिया ना तो तुझे कोई जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ तो मैं कब जिंदा रहना चाहती हूं? अच्छा है सुन ले सब और मुझे मार डालें तो एकदम। भाभी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, खामोश रह, चुप कर जा, दीवारों के भी कान होते हैं। कमरे की फिजा लम्हे भर को भोजल हो गई तो वो आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां लेने लगी। भाभी के हाथ से सूट का दामन सिरकता हुआ जमीन पर आ गिरा। लारेब, कौन है वो? लारेब ने नजरें झुका ली, आंसू एक एक करके गालों पर बहने लगे। बुरहान, बुरहान साईं, उन्होंने मुझसे निकाह किया। वो हवेली वाली बेजी का इकलौता बेटा? भाभी ने इस्तफसार किया तो उसने सर हिला दिया। तो भाभी अपना सर पकड़ कर बैठ गई। अरे उसकी तो शादी तैयार है, उसने कब तुमसे निकाह किया? 4 माह हो चुके हैं। तो उसकी बात सुनकर भाभी ने हकलाकर कहा, ये क्या कर दिया तुमने? निकाह करना ही था तो कम से कम अपने घर वालों को एतमाद में तो लेती। भाभी सब कुछ अचानक हुआ, मुझे खुद भी समझ नहीं आया। हद करती हो लारेब तुम भी। भाभी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे पता है कि तुम मां बनने वाली हो? तो लारेब ने सर झुकाकर हाँ में सर हिलाया। तो फिर उसको कहती क्यों नहीं कि वो बाइज्जत तरीके से तुम्हें रुखसत करके ले जाए? यही तो मुसीबत है भाभी। उसने चेहरा उठाकर उनकी तरफ मजलूमियत भरी निगाह से देखा। मैं ये बात कितनी बार उसे कर चुकी हूं, बल्कि डॉक्टरनी के पास भी वो मुझे खुद ही लेकर गया था। लेकिन क्या? लेकिन उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। या खुदा, वो इतना जालिम कैसे हो सकता है? ये हवेली वाले बड़े लोग ऐसे ही दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। लेकिन वो मुझसे बेहद मोहब्बत करता है, उसने मुझसे वादा किया था। तो भाभी ने उसे पुरसोच निगाहों से घूरा। अगर वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता है तो वो तुम्हें जरूर कबूल करेगा। अभी तुम्हारे पास वक्त है। कल तुम्हारा निकाह है तो तुम्हें अभी और इसी वक्त जाकर बुरहान से मिलना होगा और उसको बताओ कि तुम्हारी शादी होने वाली है। मुझे यकीन है वो जरूर गैरत खाकर तुम्हारे और अपने निकाह के बारे में ऐलान कर देगा। तो भाभी की बात सुनकर लारेब के दिल को सुकून हुआ। उसने अपने आंसू पोंछे और भाभी से कहा, क्या वाकई भाभी ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? अगर उसने तुमसे मोहब्बत की शादी की है तो यकीनन वो तुम्हारी शादी का सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और यकीनन वो ये निकाह सबके सामने कबूल कर लेगा। तुम अभी और इसी वक्त जाकर उससे मिलो और अपनी सारी बात उसको बताओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। भाभी की बात सुनकर लारेब को आसरा हुआ और वो फौरन बड़ी सी चादर लेकर हवेली की तरफ तेज तेज कदमों से जाने लगी। वो जो ही बुरहान के कमरे में पहुंची तो बुरहान उसे देखकर हैरान रह गया। यकीनन तुमने इस बच्चे के बारे में कोई अच्छा ही फैसला किया होगा। मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। उसकी बात सुनकर लारेब दुखी और कमजोर लहजे में बोली, आपको पता है मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं। तो बुरहान उसकी बात सुनकर चौंका और फिर इंतहाई इत्मीनान से पूछा, किससे? लारेब को उसके अंदाज पर शदीद हैरत हुई। उसे तो ये बात सुनते ही भड़क जाना चाहिए था, लेकिन वो तो इतने आराम से पूछ रहा था। इस बात पर वो और दुखी हो गई और आहिस्ता से बोली, खाला के बेटे के साथ। तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हें तलाक दे दूं? तो उसकी बात सुनकर इसके पैरों तले से जमीन निकल गई और वो गुस्से में बोली, अगर आप मुझे तलाक दे भी देंगे तो इस बच्चे का क्या होगा?
इस बच्चे का हल मैं तुम्हें बता चुका हूं। बुरहान साई, ऐसा मत करो मेरे साथ। ये बच्चा लेकर मैं कहां जाऊं? आपने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्यों निकाह किया? ऐसे ख्वाब क्यों दिखाए जो पूरे नहीं कर सकते थे? देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो, निकल जाओ यहां से। लारैब ने पहली बार उसे नफरत भरी नजरों से देखा और फिर शिकस्त खोरदा वजूद के साथ बाहर निकल आई। वो जब घर पहुंची तो भाभी दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। उसे लेकर फौरन कमरे में पहुंची। तुमने काफी देर कर दी। क्या कहा बुरहान साई ने? मेरी शादी का सुनकर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ना तो वो निकाह कबूल कर रहा है और ना बच्चा। तो भाभी ने परेशान नजरों से लारैब की तरफ देखा। लारैब, तुम बहुत बुरी तरह फंस गई हो। पहले तो निकाह पर निकाह जायज नहीं, और अगर खामोशी से तुम्हारा निकाह कर भी दिया जाए तो शादी की पहली रात ही तुम्हारे शौहर को पता चल जाएगा कि तुम कंवारी नहीं हो बल्कि एक बच्चे की मां भी बनने वाली हो। तो सोचो, हम सबकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। तो फिर मैं क्या करूं? मुझे जहर ला दे। बुरी बात, ऐसी बातें नहीं करते। तुमने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया। ये और बात है कि घर में तुम्हारे अब्बा और भाई और अम्मी को इस बात को नहीं समझेंगे, बल्कि हो सकता है कि गैरत के नाम पर तुम्हें जान से ही मार दिया जाए। इसलिए तुम ये पैसे पकड़ो और फौरन यहां से निकल जाओ। शहर में मेरी सहेली है, वो तुम्हें अपने घर में पनाह देगी और तुम्हारी नौकरी का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगी, लेकिन यहां पलट कर मत आना। तो वो भाभी के गले लगकर रोने लगी और फौरन ही चंद कपड़े बैग में रखकर वो घर से बाहर निकल आई। और जो ही बस स्टॉप पर गाड़ी आई तो वो खामोशी से उसमें बैठ गई। अगली सुबह हवेली में कोहराम सा मच गया कि बुरहान के ड्राइवर की बेटी भाग गई। जब यह खबर बुरहान तक पहुंची तो वो गुस्से से पागल हो गया। वो फौरन उसे ढूंढने के लिए दीवाना वार अपनी गाड़ी में निकला। गांव के हर कोने, हर रास्ते को छान मारा, शहर तक के दरो दीवार खंगाल डाले, मगर लारैब जैसे हवा में तहलील हो गई। उसके जाने के बाद बुरहान को लगा जिसे वो यकदम खाली हो गया है। वही लारैब जिसे वो कमजोर समझकर धुतकारता रहा, आज अपनी खामोशी से उसे सबसे बड़ी शिकस्त दे गई थी। हवेली वाले उसकी हालत पर बेहद परेशान थे। उन्हें डर था कहीं वो शादी ही मुलतवी ना कर दे, लेकिन खुदा खुदा करके उसकी शादी मुकर्ररा वक्त पर हो गई। मगर बुरहान के दिल के अंदर एक सन्नाटा छा गया। नई दुल्हन के साथ बैठते वक्त भी उसे हर लम्हा लारैब के लरसते हुए आंसू याद आते तो उसे गिल्ट होने लगता। ये शायद कुदरत का इंतकाम था या लारैब की बद्दुआ कि शादी के 3 साल बाद भी वो साहिबे औलाद ना हो सका। तो हवेली वाले अब उसकी दूसरी शादी कराने के चक्कर में थे, मगर इस बार बुरहान ने बगावत कर दी। वो हवेली छोड़कर शहर चला आया। शहर में आकर उसने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। बाहर की दुनिया के सामने वो कामयाब इंसान था, मगर हकीकी जिंदगी में वो खुद को एक नाकाम इंसान समझता था। एक दिन उसका पुराना दोस्त, जो कि शहर के स्कूल में प्रिंसिपल था, उसे स्कूल के फंक्शन में मेहमान खुसूसी के तौर पर दावत दी। तो वो भी वक्त गुजारी के चक्कर में चला आया कि शायद स्कूल के बच्चों को देखकर उसका दिल बहल जाए। वो अभी दफ्तर में बैठा ही था कि अचानक बाहर से एक तेज आवाज सुनाई दी। कोई औरत किसी मुलाजमा को डांट पिला रही थी। बुरहान ने ध्यान नहीं दिया, मगर फिर एक मध्यम सी आवाज उसके कानों में पड़ी। सॉरी मैम। ये लफ्ज, ये लहजा, ये लर्जिश बुरहान के दिल पर जाकर बिछ सी गई। उसके जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। यह आवाज सिर्फ एक इंसान की हो सकती है, लारैब। वो कुर्सी से उछल कर उठा और तकरीबन दौड़ता हुआ बाहर निकला। कॉरिडोर के बीच एक लड़की सफेद कमीज शलवार में खड़ी थी, नजरें झुकाए किसी से माफी मांग रही थी। बुरहान के कदम जैसे जमीन में जम गए। 3 साल की तड़प, बेबसी और यादें एक ही पल में उसके सामने मुजस्सम हो गई। लारैब, उसका नाम बुरहान के होंठों से निकला तो फजा लरज उठी। प्रिंसिपल की बेवी अबे उसे मजीद डांटने को थी कि बुरहान की गरजदार आवाज गूंजी। खबरदार, जो एक लफ्ज और कहा, ये मेरी बीवी है। पूरा स्टाफ सकते में आ गया। सबकी नजरें हैरत से बुरहान पर जमी थी, मगर लारैब के लिए वक्त जैसे रुक सा गया। वो आहिस्ता से पीछे मुड़ी और जब उसकी आंखें बुरहान से टकराईं
تو وہ वहीं सन्नाटे में डूब गई। ये पहला मौका था जब बुरहान ने सबके सामने लोगों के हुजूम में इस रिश्ते का ऐलान किया था। लारब की खाली खाली आंखों में नमी तैर गई, उसके कदम लरस गए। बुरहान उसके करीब आया और सबके बीच हाथ जोड़कर बोला, लारब मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जालिम था, बहुत अंधा। मैंने तुम्हें धुतकारा, तुम्हारी मोहब्बत को आजमाइश बनाया। लारब खामोश रही, उसके लब कांपे मगर जबान से कुछ ना निकला। वो रुख मोड़कर पास से गुजरने लगी। बुरहान के दिल पर खौफ छा गया। उसने झटके से उसका बाजू पकड़ा और उसे गाड़ी में जबरदस्ती धकेला और खुद दूसरी तरफ से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी के अंदर बैठते ही वो झुककर बोला, क्या मेरी अमानत तुमने संभाली? लारब की आंखों में शोले थे। आपको क्या हक है अपनी अमानत के बारे में पूछने का? बुरहान की आवाज लरस गई। क्यों हक नहीं, मैं बाप हूं उसका। लारब की हंसी जहर में डूबी थी। बहुत जल्दी याद आ गया कि आप उसके बाप हैं। जब मैं इल्तिजा कर रही थी, रो रही थी, तो कहाँ था वो बाप? तब तो आपने कबूल नहीं किया, आज अचानक याद आ गया। बुरहान का दिल तड़प गया। उसने आहिस्तगी से कहा, हाँ देर से याद आया, मगर आज मानता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा अहमकाना लम्हा था वो, जब मैंने तुम्हारे दिल को तोड़ने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो। लारब की आंखों से आंसू बहने लगे। माफी से क्या बदल जाएगा? आपके बच्चे ने बाप के होते हुए यतीमी झेली है। मैंने हर लम्हा अकेले सहकर उसकी परवरिश की। आपके लिए लड़ने की हिम्मत मुझ में थी, मगर आपके पास मेरी इज्जत, मेरे बच्चे के लिए एक पल भी लड़ने का हौसला नहीं था। आप बहुत बुरे हैं बुरहान साईं। वो सिसकी तो बुरहान का सर झुक गया, आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, जालिम था, बुज़दिल भी था। तुम्हारे जाने के बाद यही समझा कि सब कुछ है मगर तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा लारब। मैं हवेली में सबको बताकर निकला था कि तुम मेरी बीवी हो। वहां अब हमारा कोई मुकाम नहीं, इसलिए मैंने शहर में एक छोटा सा घर खरीदा। सोचा अगर कभी तुम मिल गई तो हम वही नई जिंदगी शुरू करेंगे। लारब के दिल में तलातुम बरपा था। वो कुछ बोली नहीं, बस उसकी आंखें भीगती गई। बुरहान ने लरसते हाथों से उसके आंसू पहुंचे चाहे, मगर उसने चेहरा पीछे खींच लिया। मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते, उसने धीरे से कहा। अजान के सामने उसके बाबा हंसते हुए ही अच्छे लगेंगे। क्या वो मुझे पहचानता है? हाँ, मैंने उसे आपके बारे में सब कुछ बता रखा है। लारब की बात सुनकर बुरहान की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगे। वो जब उसे लेकर घर पहुंची तो एक खूबसूरत गोल मटोल सा बच्चा दौड़ता हुआ आया। बाबा! बुरहान का दिल जैसे रुक सा गया। उसका बेटा उसके सीने से लिपट गया। उसके दिल में ऐसी ठंडक उतरी जैसे बरसों की प्यास बुझ गई हो। उसने अजान को बाजुओं में भरकर आसमान की तरफ देखा और शुक्र के आंसू बहा दिए। लारब की तरफ नजरें उठाई तो वो उसे खामोश भीगी आंखों से देख रही थी। अल्लाह ने मुझे बहुत देर से अकल दी, बुरहान बोला, मगर शुक्र है कि मुझे दोबारा मौका मिला लारब। अब चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, मैं तुम्हें और अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने शुक्रगुजार नजरों से अपनी नेक बीवी की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने लारब को इतनी तकलीफें दी, लेकिन उसके बावजूद वो उसकी वफादार ही रही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।